Hello guys, my name is Sachin and welcome to the video series by Krishna International Public School. I'll be teaching you biology and today's topic is sex determination. The chapter's name is Heredity and Evolution and we are going to discuss about sex determination today. So basically, what do you mean by sex determination? Sex determination. To determine the sex, either the organism is male or female. How can we determine it? Now, when the baby is born, it is very easy to determine the sex. We can say it is male or it's a female. But when the baby is inside the body of the parent, how its sex is determined genetically? That is the question. हमें कैसे पता चलेगा कि वो मेल होने वाला है या फीमेल होने वाला है? आखिर में ये मैकेनिज्म क्या है? सो हम लोग सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमन में देखेंगे और उसके बाद हम लोग एवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे. मैं कल आप लोगों को कुछ दूसरे जानवरों के बारे में भी बताऊंगा जिनमें सेक्स डिटरमिनेशन कैसे किया जाता है. वो एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क है कि सेक्स डिटरमिनेशन कुछ जानवर में टेम्परेचर के बेसिस पे होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर सेक्स कैन बी डिटरमाइंड. If temperature is too high, then it will be this. If the temperature is too low, then the opposite gender. ऐसा होता है. ये आपका होमवर्क है, ये आपको पता करना है. ठीक है? Today we are going to discuss about sex determination in human beings. So we all know that male has sex cell in the form of sperms. In the form of sperms. And female, on the other hand, has sex cells in the form of eggs, also known as ova. ठीक है? तो अब इतना तो हमें पता है. फिर ये दोनों फ्यूज होते हैं. These two fuses together to form a zygote. It's very easy concept, but let us dig deeper into it, a little bit deeper. So when I talk about male or female, I'm basically talking about a human being. The question is, how many chromosomes does a human being has? So a human being has total 46 chromosomes. A human being has total number of 46 chromosomes, or we can say 23 pairs of chromosome. 23 pairs of chromosome. Now, out of these 23 pairs or out of these 46 chromosomes, 22 pairs or 44 chromosomes are vegetative chromosomes, somatic cells, जो हाथ पैर इन सब के सेल्स हैं उनके chromosomes. And one pair or 2 chromosomes are sex chromosomes. वो sex chromosome है जो determine करेंगे कि हमारा sex क्या होता है. ठीक है? So 22 plus 1 pair, ये ही फॉर्मूला से लिखना है. 46 chromosome no, 23 chromosomes no. You will write 22 plus 1 pair of chromosome. Out of this 22 are somatic and 1 is sex chromosome. ठीक है? तो what is sex chromosome? The sex chromosome is the chromosome which is going to determine what kind of sex the baby will have. All right? So if I am a male, then in me the sex chromosome would be in the form of XY. X chromosome, Y chromosome. And if it is a female, then the sex chromosome would be XX. So female होंगी तो XX और मेल होंगे तो XY. Y जो है वो ही डिटरमाइन करता है आप मेल हो सकते हो. अगर Y है तो मेल, Y है तो मेल. हमने बात कर चुके हम लोग. डोमिनेंट क्या होता है, रेसेसिव क्या होता है. याद रखना, Y इज डोमिनेंट. Y इज डोमिनेंट. ठीक है? Y हेट्रोजाइगस भी डोमिनेंट है और होमोजाइगस तो हो ही नहीं सकता ना. Y नहीं होता है, XY होता है. तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर है. तो अगर मैं बात करूं सेक्स डिटरमिनेशन की, तो हम बोल सकते हैं कि अ मेल एंड अ फीमेल, मेल हैज XY, फीमेल हैज XX. इन दोनों का अगर हम लोग क्रॉस करेंगे तो क्या रिजल्ट आ सकता है? XX आ सकता है, XY आ सकता है, XX आ सकता है, XY आ सकता है. So there are
50% chances of getting a female and there are 50% chances of getting a male. So it is totally based on 50-50 probability that either the offspring would be female or it would be male. No one is going to decide whether it will be going to be a male or a female, but it is totally 50-50 chance based prediction. No one can say that it will be a male or female. All right. So you cannot blame a lady. You cannot blame a lady if she has given birth to a girl child or a boy child, because she does not have that capacity to control what kind of sex cells will come into her. All right. So sex determination basically has 50-50 chances of getting a male or getting a female in human body. और मैं अगर सिंपली बात कर रहा हूं, ये स्पर्म के अंदर XY है, एग के अंदर XX है, ये दोनों फ्यूज होंगे. ठीक है, याद रखना 50-50% आते हैं ना. मैंने बोला 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. ठीक है, उसमें से 23 पेयर्स मतलब 46 क्रोमोसोम में से सिर्फ 23 क्रोमोसोम मेल के, 23 क्रोमोसोम फीमेल के. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं अब कैसे होता है टोटली. प्रोसीजर क्या है? So if I am talking about procedure, let us see this. This is male, this is female, this has got 46 chromosome, she has also got 46 chromosomes. ठीक है, 46 chromosomes. लेकिन ये भी ह्यूमन है, ये भी ह्यूमन है, तो बेबी जो बॉर्न होगा वो भी तो ह्यूमन होगा. So let us see, this is baby. So baby will also have 46 chromosome. इसके पास भी 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे. कैसे? हाउ? तो 46 इधर आएगा, 46 इधर आएगा, तो 92 हो जाएंगे. रॉन्ग है. तो इसके हाफ और इसके हाफ. ठीक है, तो इधर से 23 क्रोमोसोम्स, इधर से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं एंड देन इट मेक्स टोटल 46 क्रोमोसोम. अब मैंने बोला था 23 है, तो इसमें से 22 जो होंगे वो सोमेटिक होंगे और एक जो होगा वो सेक्स सेल होगा. इधर भी 22 जो होंगे वो सोमेटिक होंगे और एक जो होगा वो सेक्स सेल होगा. मान लो यहाँ से Y आता है और यहाँ से X आता है, तो बेबी क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा. मान लो फादर से भी X आता है, तो बेबी क्या हो जाएगा? फीमेल. ठीक है, तो 50-50% चांसेस है. और इस तरीके से सेक्स डिटरमाइन होता है हमारे बॉडी में. ह्यूमन में ऐसे सेक्स डिटरमाइन होता है. किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि मेल है या फीमेल है. इट्स अ टोटल चांस. ठीक है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी. 50-50% चांसेस है मेल के और फीमेल के. इतना ये इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन में. 23 आर पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. 23 फ्रॉम फीमेल इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. इसीलिए इसके पास कैरेक्टर भी नए होंगे, क्योंकि आधे इसके कैरेक्टर आधे इसके कैरेक्टर. वेरिएशन आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. तो इट ऑल मेक सेंस नाउ. हाउ वेरिएशन अकर्स, हाउ 46 क्रोमोसोम कम्स एंड हाउ सेक्स इज डिटरमाइंड. ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हाउ सेक्स इज डिटरमाइंड इन द human body. So sex is determined on the basis of chromosomes. A human has a 46 chromosome or a 23 pairs of chromosome, out of which 22 are somatic cells and 1 is sex cell. ठीक है, अब पेयर में होते हैं तो XY एक पेयर है. XY में से अगर X आता है और फीमेल में तो दोनों X है, तो X ही आने वाला है. XY हुआ तो मेल, XX हुआ तो फीमेल. सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ठीक है बच्चों, तो इस पे थोड़ा फोकस्ड रहना. साथ ही today we are going to talk about evolution also. So now it's a very much interesting topic, evolution. When you talk of evolution, you are talking of past. Evolution, let's talk about evolution. Basically, if I'm talking about evolution, what do you mean by it? Evolution is nothing but gradual changes which has occurred in a species from time to time. किसी स्पीशीज में चेंजेस होना समय के साथ साथ एवोल्यूशन है. ये मैंने आपको 9th में बताया था. इसको डेफिनेशन को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आज थोड़ा साइंटिफिक बनाते हैं. ठीक है बच्चों, तो
अगर मैं बोलूं स्पीशीज क्या होता है, तो आप सबको पता है स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। स्पीशीज वो ऑर्गेनिज्म है जो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और ऐसे ऑफस्प्रिंग को बर्थ दे सकते हैं जो आगे जाके खुद भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो स्पीशीज उसको बोलते हैं। एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करती। मैं ह्यूमन हूं तो ह्यूमन के साथ रिप्रोड्यूस कर सकता हूं, टाइगर के साथ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, सर टाइगर इज अ डिफरेंट स्पीशीज, ह्यूमन इज अ डिफरेंट स्पीशीज। तो ह्यूमन में अगर हो रहा है रिप्रोडक्शन तो ही वो स्पीशीज है। ठीक है, so species is a group of organism which can reproduce with each other and give birth to a fertile offspring. Okay, next thing which you have to remember is now we are going to talk about evolution. evolution क्या है? evolve होना, to evolve। आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। to evolve मतलब बदलाव। आप लोग सबने पोकेमॉन देखा होगा, आई होप पोकेमॉन आप सबने देखा है। तो पिकाचू जो होता है, वो पिकाचू राइचू बन जाता है। आप लोगों ने देखा, आई थिंक, आई होप आप लोगों ने पोकेमॉन देखा है। ठीक है, तो पिकाचू से राइचू बनना, इवॉल्व होना। ब्रूस वेन से बैटमैन बनना, इवॉल्व होना। गंगाधर से शक्तिमान बनना, इवॉल्व होना। ये इवोल्यूशन है। लेकिन वहां पे वो फेक इवोल्यूशन है, वो सब 1 मिनट में हो जाता है। लेकिन रियल इवोल्यूशन को मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। और रियल इवोल्यूशन जो होता है वो किसी एक आदमी में नहीं होता या एक जानवर में नहीं होता। स्पीशीज के मोस्ट ऑफ द स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स को होना चाहिए तो जाके इवॉल्व करता है। अगर मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन? नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सेम स्पीशीज। मान लो कि 100 ऑर्गेनिज्म है, उसमें से 80 के अंदर अगर इवोल्यूशन हुआ है तो ही वो आगे बढ़ेगा। अगर 100 में से एक को इवोल्यूशन हो रहा है तो वो म्यूटेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो पॉपुलेशन में होना चाहिए चेंज। तो अगर मैं इवोल्यूशन का डेफिनेशन लिखूं तो इवोल्यूशन का डेफिनेशन होगा चेंज इन द जेनेटिक फ्रीक्वेंसी of a species with respect to time, बच्चों जेनेटिक फ्रीक्वेंसी का मतलब म्यूटेशन जो होता है वो जीन्स में ही होता है ना। इवोल्यूशन जीन्स के थ्रू ही तो होने चाहिए, तभी तो आगे के जनरेशन में पास होंगे। ठीक है, तो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी किसी एक जीन में कुछ चेंज आना और वो आगे बढ़ता जाए, उसको इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, एक और चीज है, हम बहुत बार बोलते हैं ना कि humans have evolved from chimpanzees or monkeys or whatsoever. No. Humans cannot evolve from monkey. But we have to say humans and monkeys had a common ancestor. बच्चों इसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारा कॉमन एंसेस्टर कोई होगा, उसमें से हम ह्यूमन बने और इधर कुछ मंकी बने, तो ये डाइवर्जेंट हो रहा है, ऐसे निकल रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, वी आर नॉट evolved from monkey but monkey and we had a common ancestor. That is the thing which we have to say. All right, okay, so we are talking about evolution. अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। आज एक स्टोरी सुनाऊंगा और वहीं पे चैप्टर खत्म करेंगे हम लोग। एवोल्यूशन की स्टोरी है, बहुत सिंपल सी, बहुत प्यारी सी स्टोरी है। प्यारी सी तो नहीं है, दुखद स्टोरी है, मैं आपको सुनाता हूं, देखिए। सो लेट अस हैव वन गार्डन wherein there are grasses. यहां पे grasses है, ठीक है बच्चों। यहां पे ग्रास है, इस ग्रास का कलर ग्रीन होगा और इसके अंदर बीटल्स रहते हैं बच्चों, बीटल्स रहते हैं। वो बीटल मान लो रेड कलर के हैं, ठीक है। तो रेड कलर, यहां पे ब्लू में दिखा रहा हूं लेकिन रेड मान के चलना। तो रेड कलर के बीटल्स रहते हैं और क्रो भी है, यहां पे एक क्रो है। तो क्रो बीटल्स को खाता है, तो वो क्रो जो है वो रेड वाले बीटल्स को खा जाएगा क्योंकि वो बहुत आसानी से दिख रहे हैं, ठीक है। ग्रीन कलर में रेड कलर दिखना बहुत आसान है। सो दिस क्रो इज ईटिंग दिस बीटल वेरी इजीली। लेकिन बीटल तो एक ऑर्गेनिज्म है ना, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वेरिएशन आ गया, कुछ बदलाव आ गया और एक बीटल ग्रीन कलर का पैदा हो गया।
ठीक है, एक बीटल जो है वो ग्रीन कलर का पैदा हुआ। क्रो को वो ग्रीन बीटल ग्रीन ग्रास के अंदर नहीं दिख रहा, तो क्या होगा, ये ग्रीन बीटल की पॉपुलेशन धीरे 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 बढ़ने लगेगी, बढ़ेगी ना। तो ये ग्रीन बीटल की पॉपुलेशन बढ़ गई, ब्लू बीटल अपने आप कम होने लगेंगे क्योंकि उसकी पॉपुलेशन ग्रीन की बढ़ रही है, ब्लू घट रहा है क्योंकि वो खाए जा रहे हैं और चेंज हो रहा है। तो ये इवोल्यूशन है बच्चों, ये इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन है नहीं, ये तो धीरे धीरे हो रहा है। ब्लू की पॉपुलेशन बढ़ रही, कम हो गई, ग्रीन की बढ़ गई, ये इवोल्यूशन है। लेकिन जब समय बहुत ज्यादा हो तब। लेकिन इसको एक और चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ये नेचुरल सिलेक्शन है। नेचर ने ग्रीन वालों को सिलेक्ट किया, रेड वालों को सिलेक्ट नहीं किया, तो ये नेचुरल सिलेक्शन था। द ब्लैक ऑर्गेनिजम्स वर सिलेक्ट, द रेड वर नॉट सिलेक्टेड एंड द ग्रीन्स वर सिलेक्टेड। ठीक है, तो ये नेचुरल सिलेक्शन है। अब ये नेचुरल सिलेक्शन की बात किसने की थी? ठीक है, इस स्टोरी का एक पार्ट मैंने समझाया आपको, दूसरा पार्ट कल। अब मैं बात कर रहा हूं नेचुरल सिलेक्शन की। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन जो था उसके बारे में सबसे पहले बात की थी रॉबर्ट, वही थे नहीं, विटेकर बोलने वाले थे, मुझे पता है आरएच विटेकर हो जाता है, यहाँ पे भूल कर देते हम। सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। ये 22 इयर्स का बंदा, 22 साल का लड़का, जिसने नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी। इनकी स्टोरी ध्यान रखना। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन एक शिप में गए थे जिसका नाम था HMS बीगल। इस HMS बीगल में वो घूमने नहीं गए थे, पढ़ने गए थे। HMS बीगल में वो गए, वो एक आइलैंड पे गए जिसका नाम था गैलापैगोस आइलैंड। गैलापैगोस आइलैंड, वहां पे उन्होंने फिंच बर्ड्स को देखा। एक बर्ड है उसका, आजकल उसका नाम ही पड़ गया डार्विन फिंच। तो उन्होंने देखा कि यार एक फिंच बर्ड देखा तो उसकी चोंच लंबी थी, दूसरा फिंच बर्ड देखा उसकी चोंच छोटी थी, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला इनके बीच में वेरिएशन है, उनके बीच में वेरिएशन है। और इन्हीं सब पे सोचते सोचते उन्होंने बोला कि नेचर में जो स्ट्रांग है, जो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, वो नेचुरली सिलेक्ट होगा। सो नेचुरल सिलेक्शन थियरी वाज गिवन बाय चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये याद रखना, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखने वाले चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, तो इस बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इवोल्यूशन में हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मैं आपको बताऊंगा कि इवोल्यूशन सिर्फ ये नहीं है, हमें ये पढ़ना है ओरिजिन कैसे हुआ, पहले पढ़ेंगे लाइफ बना कैसे, अर्थ आया कहां से। तो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में द बिग बैंग थियरी के बारे में बात करेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में बिग बैंग थियरी के साथ साथ ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ आया कैसे, उसकी बात करेंगे। फिर वहां से हम हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन की, कि इंसान कैसे बने। और ये सब कुछ हम लोग कल के लेक्चर में जो इवोल्यूशन का कंटिन्यूएशन होगा उसमें करेंगे। आज हमने सिर्फ इतना देखा नेचुरल सिलेक्शन क्या है और इवोल्यूशन किसको बोलते हैं, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने क्या किया था। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को सपोर्ट करने वाले साइंटिस्ट का नाम था अल्फ्रेड वॉलेस। उन्होंने चार्ल्स डार्विन को सपोर्ट किया था, ये भी याद रखना। और वो गए थे मलय आइलैंड पे काम करने के लिए। मलय आइलैंड जो आजकल इंडोनेशिया के नाम से जाना जाता है, तो उन्होंने वहां पे काम किया था। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, एनटीएससी के लिए आपको काम आ सकता है। बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज एवोल्यूशन, और सेक्स डिटर्मिनेशन पे तो क्वेश्चन आ सकता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो वीडियो भेजने वाला हूं उसमें हम लोग बात करेंगे origin of life, origin of earth, and then we will start again the depth of evolution. All right, we will dig deeper into it. Thank you guys.